Hello, welcome back. Today we'll be discussing triplet primed PCR. Triplet primed PCR is done to find the full length of the triplet repeats and what are triplet repeats and uh, what they lead to. They lead to triplet repeat expansion disorder. And before understanding the triplet primed PCR, हम will try to understand what are triplet repeats and what they led to. Trinucleotide repeat disorder consists of group of human diseases which are result of an abnormal expansion of repetitive sequence which primarily affect the nervous system, and these can occur during various stage of human development. Okay, this is an example of this HTT in which in normal condition there are fewer number of copies of these triplet, and what what happens in the triplet repeat expansion, the copy number of this triplet increase, which led to protein with extended polyglutamine tract, which lead to a gain of function in this protein. We are discussing HTT genes in this example. These repetitive sequences scattered in the microsatellite region and usually account for about 30% of the human genome. In normal person, the main purpose of the various length of repetitive DNA is to allow the evolutionary plasticity. But when these repeat extend beyond the code for viable physiological protein, the expression of this aberrant segment is suppressed. But after a certain threshold number, this suppression is lost and aberrant protein is coded for, which give rise to either a functional or a non-functional protein, which thereby give rise to either to a gain of function or a loss of function. Now we'll be discussing few examples of these repeat disorder, nucleotide repeat disorder, और it can be possible कि ये जो repeat हो रहा है, either it can be the promoter region or the exon or the intron or anywhere in the genome, और उनका few examples are discussed in this diagram. For example, in the fragile X syndrome, CGG trinucleotide is repeated, and if the repeat number is greater than 200, तब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है. और इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होता है ऑफ द प्रोटीन, जिससे क्या होगा, दैट देयर इज लॉस ऑफ, दिस इज क्योंकि साइलेंसिंग हो रहा है तो देयर विल बी लॉस ऑफ function mutation in case of fragile X syndrome. Similarly, few other examples um, are also explained in which mutation is um, repetition का increase either in the intron or in exon. For example, Huntington disease repeat is the CAG, and if repeat number is greater than 40, so the Huntington disease will develop, और यहाँ पर protein will have a gain of function. Okay, with each generation the number of repeat increase drastically generations के साथ, from one parental to child. F1 जनरेशन जो हमने वो पढ़े हैं मेंडल में भी, जैसे तो पेरेंटल जनरेशन से जो फीलियल जनरेशन F1 आएगा, इनमें भी नंबर ऑफ रिपीट इंक्रीज होता है, प्लस एज का भी रिलेशन है विद इन नंबर ऑफ एक्सपेंशंस के साथ, और डिजीज़ कब अपना इफ़ेक्ट शो करता है उसके साथ. अगर नंबर ऑफ एक्सपेंशंस ज़्यादा हैं इन द लेस कम एज में, सो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट नज़र आएगा डिसऑर्डर का. प्लस द सिवियरिटी ऑन द अदर हैंड ऑल्सो वर्सन विद एवरी जनरेशन, बिकॉज हर जनरेशन के साथ रिपीट का नंबर ऑफ रिपीट आर ऑल्सो increasing. Okay, thus the inheritance pattern जो ये repeat expansion disease कैरी कर रहे हैं, ये एविडेंस किसका है,
डायनेमिक नेचर है इसका, मतलब इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और इसकी बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक नेचर वी कैन एंटिसिपेट अबाउट द डिजीज या डिसऑर्डर जो डाउनस्ट्रीम डेवलप हो रहा है with this trinucleotide. So in this graph we can see on the x axis पे हमको पैटर्नल रिपीट दिख रहा है ऑफ दी, और यहाँ पे दिखाया गया है नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स का नंबर कितना है, और वाई एक्सिस पे हमको ऑफस्प्रिंग का रिपीट लेंथ और नंबर ऑफ ट्रिपलेट दिखाया गया है। और ये हंटिंगटन डिजीज़ का के लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। और इसमें क्या शो कर रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ रिपीट लेंथ टू इंक्रीज विद पैटर्नल ट्रांसमिशन ऑफ हंटिंगटन। सो वी कैन ऑब्जर्व कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो भी पॉइंट्स अबव द डायगोनल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केसेस इन विच द रिपीट लेंथ इंक्रीज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम द फादर टू चाइल्ड, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन रिपीट लेंथ। जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा था कि हर जनरेशन के साथ हमारा नंबर ऑफ रिपीट इंक्रीज हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर विद डाटा शो की गई है। दिस डाटा इज़ फ्रॉम अ पेपर जिसका रेफरेंस इज गिवन। देर इज़ अनदर जो अभी हमने इंटर समझा था उसी के लिए एक ग्राफ है कि रिपीट लेंथ का रिलेशन विद द एज ऑफ ऑनसेट। जितना ज़्यादा रिपीट लेंथ होगा उतना जल्दी एज ऑफ ऑनसेट होगा। ओके, इसमें क्या दिखाया गया है, कोरिलेशन ऑफ रिपीट लेंथ विद द एज ऑफ ऑनसेट, जिसमें रिपीट लेंथ इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड एज ऑफ ऑनसेट इज ऑन द वाई एक्सिस। एंड जैसे ही एज द रिपीट लेंथ इंक्रीज द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज डिक्रीज। ठीक है, दिस इज अ पेडिग्री ऑफ एन हंटिंगटन फैमिली इन विच द, जैसे कि आपको भी पहले से पेडिग्री के बारे में आइडिया होगा, इफ़ यू अगर नहीं पता है तो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल इन दिस पेडिग्री चार्ट, और वैसे भी स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल। द रेड बॉक्सेस इंडिकेट द affected individuals. Open circle are unrelated spouses, means they are from different families. Black number, these black number represent the CAG repeat present जो एक allele में है of the affected family member, and the small black letters indicate the allele present in father to son transmission. Okay, and the number in bracket represents the size of CAG expansion जो चेंज हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व फ्रॉम द चार्ट गिवन फ्रॉम हियर, वी कैन सी कि पैटर्नल जनरेशन में CAG रिपीट was 24 and 33 in father and 17 and 29 in the mother. So this is B and this is D। जो फादर से कौन सा अलील ट्रांसमिट हुआ है इन दी प्रोजेनी ये शो हुआ है कि फादर में बी अलील वॉज हैविंग 36 और यहाँ पर 33 एंड यहाँ पे 36 है, मतलब देर इज +3 फ्रॉम फादर टू सन। और यहाँ पर मदर में कितना था, 29 था, और यहाँ पे सन में कितना है, 33 है, यानी +4 यहाँ से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब वी कैन ऑब्जर्व, अब ये F1 से जब F2 जनरेशन में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्दर देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिपीट्स में, यहाँ पे +13 हो रहा है, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द रिपीट्स। जब ये रिपीट इंक्रीज हो रहे हैं तो रिपीट का नंबर कितना है ये अफेक्ट करता है डिजीज़ की सिवियरिटी को। वी कैन सी कि नॉर्मल ये डाटा दिस इज़ फॉर हंटिंगटन डिजीज़, ऐसे ही अलग अलग डिजीज़ के लिए डिफरेंट टॉलरेंस लेवल के लिए रिपीट का कितना टॉलरेट हो सकता है उसके लिए ग्राफ दिखाया जाता है, ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है।
दिस इज फॉर हंटिंगटन। इस ग्राफ में वी कैन सी दिस इज अ इन्वर्टेड ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ CAG रिपीट्स, मतलब नीचे हमारे रिपीट्स कम है और विद द ग्राफ हमारा वो विद द ट्राइंगल वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, जिसमें कॉपी नंबर वो है वो <26 है और उनमें डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। और ये जो बीच बीच में हमको लाइन नज़र आ रही है, लाइन इंडिकेट अनअफेक्टेड कैरियर फॉर डिजीज, जिसमें किसमें है 27 to 35 में देर इज इंक्रीज इन रिपीट, पर वो भी अनअफेक्टेड है, पर वो कैरियर। द टॉप पार्ट ऑफ ट्राइंगल इंडिकेट द अफेक्टेड इंडिविजुअल यहाँ पर इनमें पेनिट्रेंस रिड्यूस्ड है। एंड द टॉप मोस्ट पार्ट जिसमें कि डिसऑर्डर डेवलप हुआ है इन विच रिपीट वाज ग्रेटर देन 40। तो हम इस इन्वर्टेड ट्राइंगल से ये देख सकते हैं कि जब कॉपी नंबर कम था तो कोई सिम्टम्स या डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ था। एज द कॉपी नंबर ऑफ द डिजीज इज इंक्रीजिंग, सो सिम्टम्स या सिवियरिटी ऑफ डिजीज भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द पेशेंट। सो व्हाट इज पेनिट्रेंस, जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, पेनिट्रेंस रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएंट जो एग्जिबिट करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, हाउ डू वी टेस्ट फॉर दिस डिसऑर्डर्स और ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स रिपीट का एक्सपेंशन? तो इधर इट कैन बी डिटेक्टेड बाय हाउ डू वी डायग्नोज फॉर दिस डिसऑर्डर? इधर डॉक्टर कैन डायग्नोज इट विद द सिम्टम्स जो कि पेशेंट शो कर रहा होता है, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि डेवलप किए हैं टू डिटेक्ट दिस ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन जो एसोसिएटेड है बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ। कौन से हैं ये टेक्निक्स एंड टेस्ट? जैसे सदर्न ब्लॉटिंग एंड PCR एम्पलीफिकेशन जो कि किया जाता है। फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग द सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग ब्लॉट ऐसे आर रिगार्डेड, ये जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड रिपीट का एक्सपेंशन कितना है, उसका साइज या नंबर कितना है, ये पता करने के लिए। तो सदर्न ब्लॉट कैसे किया जाता है? फर्स्ट द DNA is extracted from the whole blood, then it is genomic DNA is restriction digested with restriction endonuclease to cut the outside that region of trinucleotide expansion. Then the फिर DNA को रन किया जाता है ऑन द जेल टू सेपरेट द फ्रेगमेंट ऑन द फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, प्लस उसको सब बिफोर रनिंग ऑन दी जेल उसको डीनेचर किया जाता है बाय ट्रीटिंग विद यूरिया और डिफरेंट डीनेचरेंट्स, बिकॉज जो हमारा सेगमेंट जिसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं दैट हैव रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल CGG, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। सो हमको सेग्रीगेशन करना है अकॉर्डिंग टू दी साइज। सो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल फॉर्म in that part of DNA, then our fragments will not separate according to their size. So हम initially we denature the DNA, then we run it on our gel, then it will separate according to their size. Then we transfer this DNA from gel to NC membrane and hybridize it with the radio labeled DNA probes and visualize it by developing. Okay, so this shows the flow that how the southern blot is done. So this is an example of data जिसमें कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए सदर्न ब्लॉट किया गया है, और वी कैन सी फ्रॉम हियर कि नॉर्मल मेल में हमको बैंड यहाँ नज़र आ रहा है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर साइज ऑफ फ्रेगमेंट छोटा है तो इट विल रन फास्टर और वो हमको जेल में नीचे नज़र आएगा, और अगर साइज़ बड़ा है तो वो हमको नियर दी
वेल नज़र आएगा। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मल मेल है तो उसमें हमको बैंड यहाँ नज़र, नॉर्मल फीमेल सिंस फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या, कौन सा एक्स क्रोमोसोम के बारे में हम बात करें, एक्स क्रोमोसोम के बारे में हम बात करें तो मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम। ओके, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हमको दो बैंड्स नज़र आ रहे हैं। इन दैट टू क्रोमोसोम्स वन इज इनएक्टिवेटेड एंड वन इज एक्टिव। तो इनएक्टिवेटेड इज इनएक्टिवेट कैसे किया जाता है, बाय मिथाइलेटिंग। सो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम हमको यहाँ नज़र आ रहा है और एक्टिवेटेड डाउन देयर। ओके, इन थर्ड वेल में हमको क्या दिख रहा है, फीमेल विद परम्यूटेशन कैरियर, मतलब उसमें भी रिपीट इंक्रीज हुए हैं पर उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो इन दैट केस हमको क्या दिख रहा है, हमको तीन बैंड दिख रहे हैं विद द परम्यूटेशन कैरियर, और यहाँ पर एक बैंड का साइज इज स्मॉलर, मतलब बैंड कहाँ पर है, एट पोजीशन हायर देन द अर्लियर, विच मीन्स कि उसका साइज इज लार्जर बिकॉज ऑफ रिपीट ऑफ इंक्रीज इन द रिपीट, ट्राइन्यूक्लियोटाइड का रिपीट, ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन हुआ है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ लेन में हमको क्या दिखाया गया है, अफेक्टेड मेल दिखाया गया है, एंड उसमें भी बैंड जो है वो सबसे नियर द वेल नज़र आ रहा है, मतलब इसका साइज उन सबसे बड़ा है, डीएनए फ्रेगमेंट का साइज उन सबसे बड़ा है। वो साइज बड़ा क्यों है, बिकॉज ऑफ द ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन की वजह से, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वहाँ पर हमको एक ही बैंड नज़र आ रहा है। ओके, तो ये दिखाया गया है कि रिपीट्स जब ट्रिपलेट रिपीट का इंक्रीज होते हैं तो जेनेट मतलब वो कैसे होता है, मतलब सीक्वेंस वाइज उसको शो किया गया है यहाँ पे कि नॉर्मल कंडीशन में कॉपी नंबर कम होता है, प्री म्यूटेशन में कॉपी नंबर इंक्रीज बट वो टोलरेबल होता है, पेनिट्रेंस इतना नहीं होता उसका। देन जो टॉप लेवल जिसमें कि सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं दैट इज फुल एक्सपेंशन, जिसमें कि रिपीट नंबर बहुत हाई हो जाता है। जैसे इन दिस केस इट इज़ शोन कि प्री म्यूटेशन में कॉपी नंबर जो है वो 74 है और फुल एक्सपेंशन में 270 हो गया है। जो कि ये डाटा इसी ग्राफ के लिए इसी साउथ, मतलब यही वाला डाटा वहाँ पे शो किया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में कितने रिपीट्स थे, प्री म्यूटेशन में कितने थे, फुल एक्सपेंशन में कितने थे। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब जो पहले एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर फिर से एक बार विद फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नॉर्मल मेल में हमको 2.8 केबी का बैंड नज़र आता है और फीमेल में हमको 2.8 केबी का ही एक बैंड प्लस एक बैंड 5.2 केबी, बिकॉज वो इनएक्टिवेटेड है, बिकॉज और वो फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है ना, तो इनएक्टिवेटेड है और जिसकी वजह से उसका साइज हमको लार्जर नज़र आ रहा है। फीमेल विद प्री परम्यूटेशंस में क्या होता है, प्री म्यूटेशन में कि हमको एक बैंड नज़र आता है स्लाइटली अबव देन दी 2 के ए बी, जिसमें कि रिपीट एक्सपेंशन होता है। और अफेक्टेड मेल में हमको बैंड कहाँ नज़र आ रहा है, 5.2 के बी से भी ऊपर, जिसमें कि फुल साइज एक्सपेंशन है ऑफ द ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन। तो हम साउथ सदर्न ब्लॉट से वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन, जो कि हमको पता करना था, क्योंकि अगर हमको साइज़ पता है तो फ्रॉम द डाटा विच वी हैव, जो हमने अभी ट्रायंगल वाले उससे समझा था, वी कैन फाइंड आउट कि उसमें एट एन वेरी अर्ली एज की उसमें सिम्टम्स या डिसऑर्डर डेवलप होगा कि नहीं। बट नाउ इज द सदर्न ब्लॉट इज़ वेरी सेंसिटिव टेक्निक, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, इनएफिशिएंट है, बहुत कॉस्टली है। इसको बहुत मतलब द अमाउंट जो हमको चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, ऑन एन एवरेज 10 माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए हमको, वो भी हाई क्वालिटी का चाहिए होता है एक एनालिसिस के लिए, है ना। प्लस जो प्रोब्स इसमें यूज़ किए जाते हैं दैट आर रेडियो लेबल्ड, जो कि जिसका हैंडलिंग
itself is a जिसको बहुत efficiency चाहिए होता है, ठीक है. Because of all these reasons, southern blot has been replaced by PCR method, which is cheaper and efficient than the southern blotting. Okay, it's for this video. Rest we'll the discuss about this triplet prime PCR in the next video. Thank you for watching. If अगर कोई गलती थी, you can comment, and if you like the video, do like, share, and subscribe the channel ABC of by ABC.